Hello learners, welcome to an academy. This is your favorite educator KP sir. So recently we have completed SSC JE examination, prelims examination 2023. So in that environmental engineering questions for all sets of SSC JE prelims, we are going to solve now environmental engineering related. Why I choose environmental engineering? Because remaining subjects, most of the questions are from our syllabus. But environmental engineering, especially the topics of air pollution, noise pollution, solid waste management, some out of the box questions. There are very less or no questions from water supply engineering or wastewater engineering in some sets. So environmental is purely given with respect to pollution aspects, and that is present trending pollution like air pollution, noise pollution and solid waste management. So what we have studied is entire from water supply engineering, water treatment, water quality, wastewater engineering, characteristics of sewage, BOD, COD and also sewage treatment, disposal, lot of things we studied. Finally in SSC JE prelims 2023, the pattern is completely changed. Their focus is present trending scenario as per the market. The present trending scenario and present focused areas of pollution like air, noise and solid pollution. So इसका बारे में बहुत सारा क्वेश्चंस दिया और कोई आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चंस कुछ नहीं इंक्लूड कर दिया सिलेबस में, और देर आर सर्टेन क्वेश्चंस विच आर नॉट रिलेटेड टू इंजीनियरिंग, कंप्लीटली थियरी रिलेटेड क्वेश्चंस आर आल्सो गिवन. सो इसका बारे में आपका थोड़ा ओवरव्यू, थोड़ा नॉलेज देना पड़ेगा, especially for those who are going to prepare for 2025 SSC JE prelims examination. क्योंकि हमारा तैयारी 2024 को होने के बाद 2023 का पेपर का पैटर्न, इनका वेटेज ऑफ क्वेश्चंस, इनका मॉडल समझ होना चाहिए. ये समझ होने के बाद आपका 2024 SSC JE prelims आसान हो जाएगा. So before starting it, as usual, Brahmastra 2.0 full course of GATE and ESC 2024 we are giving as a crash courses. Myself and top educators of Unacademy are teaching most of all the subjects in YouTube and special classes. I hope you know, हम एनवायरमेंटल का 6 लेक्चर्स कर दिया, 10 घंटा ऑलरेडी हो गया और रिमाइनिंग भी करेंगे. देन आफ्टर दसरा हॉलीडेज वी आर गोइंग टू डू द रिमाइनिंग सेशंस. and Brahmastra 2.0 प्लस कोर्सेस. सो प्लस कोर्स या YT कोर्स का डिफरेंस क्या है? YT कोर्स में सिर्फ क्लासेस ले लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. प्लस कोर्स में आपको क्यूरेटेड टेस्ट सीरीज, DPP डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, PDFs भी मिल जाएगा, आपका टीचर से बात करने का मौका भी मिल जाएगा आपको. सो दिस इज डन ऑलरेडी अप टू 18. टोटल 6 सेशंस वी हैव डन. Remaining I will do after the Dasara holiday. Then Brahmastra plus batch already started. Mission GATE and ESC 2025. So for the second and third year, this is the best opportunity to join. And from tomorrow, there is an offer coming, which is an exclusive offer, which will help you to take the subscription at minimum cost. Join using our universal code. बताओ बाबू कोड क्या है? चलो. So we move on to the questions. We are going to move on to the questions. First question, carbon monoxide. So air pollutant and its effects. Pollutants are given carbon monoxide, halogenated solvents, hydrocarbon. Effect asphyxia, attack the liver, causes cancer. So it's a match following question. So we know carbon monoxide is going to cause asphyxia. How do you know carbon monoxide? Carbon monoxide combines with hemoglobin, so it results carboxyhemoglobin. Carbon monoxide combines with hemoglobin of blood circulation, results carboxyhemoglobin. Carboxyhemoglobin causes breathlessness. It is an asphyxiant. Carboxyhemoglobin is an asphyxiant which causes breathlessness, that inability to take the breath. That property we call it as asphyxia. Halogenated solvents, chlorine,
fluorine, bromine, iodine. Solvents, liquids, liquid air pollutants, not liquids, liquid air pollutants carrying halogen compounds chlorine, fluorine, bromine, iodine attacks liver. Hydrocarbons are carcinogens. We call it as VOC, volatile organic chemicals. Hydrocarbons are also called VOC, volatile organic chemicals. They are carcinogenic in nature, they cause cancer. So क्या मिल जाएगा हमको आंसर? पहले कार्बन मोनोऑक्साइड को एस्फिक्सिया 1A, दूसरा हैलोजिनेटेड सॉल्वेंट अटैक लिवर 2B, तीसरा हाइड्रोकार्बन्स causes cancer. ABC is the answer. Which of the following options is best suited condition for energy recovery? हम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट ले लिया. म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट लेने के बाद सुनो ध्यान से, एनर्जी रिकवर करना पड़ेगा. बाय टेकिंग म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट वी हैव टू रिकवर एनर्जी फ्रॉम द सॉलिड वेस्ट. सो ये एनर्जी रिकवरी करने के लिए कौन सा कंडीशन बेस्ट सूटेबल हो जाएगा? प्रेजेंस ऑफ मोर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस लाइक ग्लास. ये ग्लास से कुछ एनर्जी आएगा क्या आपको? आप एनर्जी रिकवर करने के लिए ग्लास इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, इससे कुछ भी एनर्जी नहीं मिल जाएगा हमको. हम बोल दिया ये इंडस्ट्री को रिकवरी करने के लिए दे दो ग्लास, सीमेंट ग्रैन्यूल्स, ब्रोकन ब्रिक्स, प्लास्टिक, पेपर, ये रीयूज करने के लिए इंडस्ट्री को दे दो, एनर्जी नहीं निकल जाएगा इनसे. सो रॉन्ग आंसर. प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर सच एज मेटल. अरे इनऑर्गेनिक मटेरियल में कुछ एनर्जी भी नहीं था. मटेरियल ऑर्गेनिक होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल को बॉन्डिंग ज़्यादा हो जाएगा, ये पॉलीमरिक स्ट्रक्चर करेगा और इनका टूटने के बाद, इनका बॉन्ड टूटने के बाद, ब्रेक डाउन करने के बाद यू कैन गेट द एनर्जी. बट हियर इनऑर्गेनिक मैटर, स्मॉल एंड सिंपल डायरेक्ट मेटल्स, इनको कुछ एनर्जी नहीं मिल जाएगा. सो एनर्जी रिकवरी, हाई कैलोरीफिक वैल्यू कंटेनिंग सॉलिड वेस्ट, ट्रू. मोर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा, एनर्जी कम हो जाएगा. पानी ज़्यादा होगा तो एनर्जी कम हो जाएगा, पानी से कुछ एनर्जी भी नहीं आएगा. सो आंसर इज हाई कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड वेस्ट. नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ ए साउंड वेव पर यूनिट टाइम. 1 घंटा में कितना वाइब्रेशंस आ रहा है साउंड वेव से? 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 आवर, 1 सेकंड में यूनिट टाइम में हाउ मेनी वाइब्रेशंस आर कमिंग फ्रॉम ए साउंड वेव? सो यूनिट पूछ रहा है. नंबर ऑफ साउंड वेव्स पर टाइम, per unit time. Bell, decibel, pressure second, these are pressure units, not frequency units. Pressure units. Number of vibrations of sound wave per unit time. Sound wave per unit time, it is said to be frequency. Frequency of sound wave nu, that is measured using the unit hertz. Hertz is the unit for frequency of sound wave. Select the correct statement related to water distribution pipe system. Sluice valves are provided at only once at the start of pipe system. मालूम था आपको sluice valve क्या है? Sluice valve is a gate valve, control valve, which regulate the flow. सो ओनली वंस ऐसा फ्लो कंट्रोल करने, धीरे धीरे हर एक पॉइंट में एक स्लुइस वाल्व होना चाहिए. आपका घर, दूसरा वाला का घर, बाजू वाला का घर, आपका स्ट्रीट, बाजू वाला स्ट्रीट और दूसरा स्ट्रीट, हर एक स्ट्रीट को एक स्लुइस वाल्व होना चाहिए. हर एक डायरेक्शन चेंज में एक स्लुइस वाल्व होना चाहिए. स्लुइस वाल्व इज ए गेट वाल्व
wherever you want to change the direction, wherever you want to control the flow, several sluice valves are required. Wrong. Drain valves. Drain valves are scour valve to remove flow of water, to drain out excess water, and to remove sedimented deposits in the pipe. पानी निकलने के लिए, पानी के साथ साथ सेडिमेंटेड डिपॉजिट, सिल्ट कंटेंट, वट एवर सेडिमेंटेड डिपॉजिट्स स्काउर करने के लिए ड्रेन वाल्व्स आर रिक्वायर्ड। हाई पॉइंट में ड्रेन वाल्व का यूज भी नहीं है, क्योंकि हाई पॉइंट में हाई फ्लो, हाई पॉइंट मीन्स हेवी डिस्चार्ज, लार्ज डिस्चार्जेस, हेवी फ्लो कंडीशन में देयर इज अ सेडिमेंट डिपॉजिशन नॉट हैपन। सेडिमेंट रोकने का जरूरत नहीं, हाई पॉइंट हाई फ्लो कंडीशन में सेडिमेंट पानी के साथ साथ चल जाएगा। कहाँ सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाएगा? सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाएगा कहाँ है? लो पॉइंट में। लो पॉइंट, ड्रेन वाल्व्स आर प्रोवाइडेड एट ऑल द लो पॉइंट्स। क्योंकि ड्रेन वाल्व, स्कोर वाल्व एट लो पॉइंट सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाएगा, ये सेडिमेंट निकलने के लिए चाहिए हमको। सो ड्रेन वाल्व्स एट लो पॉइंट्स। Municipal solid waste is also known as easiest question. Street sweeping, municipal rubbish, refuse and leachate. Refuse include all MSW. Refuse include all MSW, no? Refuse include rubbish, garbage, dust. Dust means street sweepings, ashes. So that all components included in the MSW, that is called refuse. A pump has to pump water through a pipeline of height 10 meter. ये बात सुनो, सिर्फ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन फ्रॉम एंटायर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, दिस क्वेश्चन ओनली। ए पंप ले लिया, इट हैज टू सप्लाई वाटर टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर above ground. This is elevation head. At a rate of 0.2 meter cube per second, discharge 0.2 meter cube per second. Static head or elevation head, static head or elevation head 10 meter. Water in a sump tank is 5 meter below ground level. Water in a sump head is 5 meter below ground level. So it should be sent a frictional head, we can say. Head loss, you can say. You can say it as a head loss. Head loss you can consider 5 meter. So हम ऐसा बोलेगा total loss, total head 15 meter. Neglect loss due to friction. Pumping power required would be, pumping power required would be in kilowatt. पावर निकलना पड़ेगा ऐसे, पावर निकलना पड़ेगा, पावर इज इक्वल टू रो क्यू जी एच इन वाट, क्यू जी एच इन किलो वाट, बिकॉज क्यू इज टेकन एज 1000 watts is equal to rho is equal to, sorry, rho is taken as 1000, water density 1000 kg per meter cube, rho into W watts, 1000 watts is equal to 1 kilowatt. So QGH, Q 0.2, G 10, H 15, 30 kilowatts. This much easiest question. Not in horsepower, not in horsepower, just in kilowatts. It is going to ask you in kilowatts only. Option A. Option A. Understand only the thing. Height is 15, 10 plus 5, G10, Q is given 0.2, 30 kilowatt. Which of the following statements with respect to characteristics of solid waste is correct? Solid waste का बारे में, this is a completely absurd question. कोई चीज कोई किसी आदमी से नहीं हो जाएगा, बट स्टिल विल ट्राई. रेफ्यूज ऑफ ए टिपिकल इंडियन सिटी
has a garbage percentage by weight than that of a city in a USA. Garbage in India is more than USA. Less garbage in India is when compared to USA. Refuse less density than that of USA. Refuse of typical Indian city has more rubbish percentage than USA. इधर एक चीज बोलना पड़ेगा आपको. If you talk about a density of any refuse, any garbage, any rubbish, approximately same. We can't differentiate country to country. First option निकल गया. Refuse of any city, any country have same density. Second one, USA, more corporate world, more offices, more kind of institutions, and so their rubbish will be more when compared with the Indian rubbish. They can use paper well, they can use so many kind of stationery products, their institutional waste is very high. So rubbish is more in USA than India. And what is high in India? Ultimately हमारा garbage, because India is an agricultural country, और हम फूड वेस्ट ज़्यादा करेगा और हमारा कचरा में गार्बेज डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट ज़्यादा हो जाएगा. सो दैट वी कैन गो. इट्स ए कॉमन सेंस रिलेटेड क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग से सोचना पड़ेगा. सेलेक्ट द एंथ्रोपोजेनिक. ये एंथ्रोपोजेनिक सोर्स क्या है? एंथ्रोपोजेनिक मीन्स आर्टिफिशियल सोर्स. आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन. Dust storms, volcanoes, forest fires. So these are all natural sources. कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है, कुछ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन भी नहीं है. डस्ट स्टॉर्म्स, वोल्कनोस, फॉरेस्ट फायर्स. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स मैन मेड. घर का खाना बनने के लिए, व्हीकल रन करने के लिए, इंडस्ट्री रन करने के लिए fossil fuel like coal, wood, kerosene oil we can use. Ultimately fossil fuel निकल जाएगा. Which of the following options is not considered? समझ लो बेटा, not बोल रहा है, not considered as a component of 3R principle of MSW. 3R: reduce, reuse, recycle. बट रिकवरी, हम कभी भी सॉलिड वेस्ट से रिकवरी नहीं करेगा. रिकवरी इज नॉट कंसिडर्ड. देखो, दिस इज हायरार्की, वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की. मोस्ट फेवर्ड ऑप्शन फर्स्ट. पहले हम वेस्ट नहीं आने के लिए प्रिवेंट, कंप्लीटली स्टॉप रिलीजिंग डिस्कार्डिंग सॉलिड वेस्ट. कंप्लीटली स्टॉप डिस्कार्डिंग सॉलिड वेस्ट नहीं पॉसिबल होगा. रिड्यूस करो, डिस्कार्डिंग और जनरेटिंग सॉलिड वेस्ट रिड्यूस करो. देन रीयूज, बार बार सेम कंपोनेंट यूज करो. नहीं होगा, वेस्ट रिसाइकिल करके और दूसरा मटेरियल करो. दिस आर ट्रिपल आर. अरे बाबू, ट्रिपल आर इज नॉट मूवी. ट्रिपल आर इज रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल. समझ आ रहे? You need to reduce the generation of solid waste. Solid waste generate करने का कम करना पड़ेगा. नहीं पॉसिबल होगा, रीयूज करो. ये नहीं पॉसिबल होगा, एटलीस्ट डिस्कार्ड करने के बाद और एक बार लेके रिसाइकिल करके नया प्लास्टिक, नया पेपर, नया ग्लास रिसाइकिल करो. रिकवरी है हमारा पास, बट सॉलिड वेस्ट रिकवरी नहीं है. एनर्जी रिकवरी है. क्वेश्चन में देखो, वेस्ट का रिकवरी बोल दिया, इधर सॉलिड वेस्ट में वेस्ट का रिकवरी बोल दिया. हम वेस्ट को रिकवर नहीं करेगा, एनर्जी रिकवरी करेगा, देन डिस्पोजल. सो ये याद रखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार ये दे रहे. प्रीवियसली ईएससी में दिया और एमएसक्यू क्वेश्चन में गेट में भी दिया, अभी एसएससी जेई में आ गया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. स्क्रीनशॉट लेके वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की आपके साथ रख दो. Which of the following is an absorption unit? Adsorption unit. Adsorption, attachment onto the surface.
अटैचमेंट ऑन टू द सरफेस। ये बात बताओ, हम बार बार ये बोल दिया स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्बेंट इन नेचर, हम बोल दिया ना बार बार, बताओ क्या है? अरे फेस वॉश में आएगा ना, चारकोल फेस वॉश, ब्लैक कलर ग्रेन्स आर कमिंग, द मोस्ट एक्टिव हाईली एफिशिएंट स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्बेंट, इतना बार बोल दिया, एक्टिवेटेड कार्बन एड्सॉर्बेंट। सो अभी पूछ रहा है एड्सॉर्प्शन यूनिट फॉर कंट्रोलिंग गैसियस पोल्यूटेंट। स्क्रबर्स दिया इधर, वेंचुरी स्क्रबर, स्प्रे टावर इज आल्सो स्क्रबर, प्लेट टावर, these are for particulate matter along with liquid particulate matter, but they are asking about gaseous pollutant, activated carbon unit for gaseous pollutant। देखो गैस इनलेट से अंदर आ रहे हैं, इनलेट से अंदर आने वाला गैस, इनलेट से अंदर आने वाला गैस इधर ऊपर चल रहे और नीचे चल रहे। इनलेट से अंदर आने वाला, ऊपर क्या है, ऊपर भी कार्बन बेड है, नीचे भी कार्बन बेड है। सो दोनों कार्बन बेड के इनसाइड चल रहे। गैस विच विल गो अप, गैस विच विल गो डाउन, दोनों दोनों कहाँ चल रहे? कार्बन बेड में चल रहे। देन क्लीन गैस निकल जाएगा। कार्बन बेड कैन अट्रैक्ट पोल्यूटेंट मास, क्लीन गैस बाहर निकल जाएगा, क्लीन गैस बाहर निकल जाएगा। Soon before the passing of Air Pollution Control Act in 1981 in India, institution called NEERI had conducted a survey prevailing air quality in 9 major cities of India। अरे 1981 का काम अभी पूछ रहा है, देखो बेटा, which of the following cities had sulfur dioxide concentration exceeding maximum tolerable value 80 microgram per meter cube? Kolkata, the city with the highest sulfur dioxide concentration is Kolkata, which exceeds 80 microgram per meter cube। Rubbish in solid waste management, rubbish हम बोल दिया ना, सॉलिड वेस्ट में रेफ्यूज दो चीज लगेगा, ऑर्गेनिक बोलेगा गार्बेज, इनऑर्गेनिक बोलेगा रबिश। ऑर्गेनिक इज ए प्यूट्रिसिबल, इनऑर्गेनिक इज ए नॉन प्यूट्रिसिबल, ऐसा भी बोलेगा ना। रेफ्यूज, गार्बेज, रबिश। गार्बेज इज decomposable, putrescible means degradable, decomposable। rubbish is non decomposable, non putrescible, which of the following statements is incorrect? Collection efficiency of cyclone collector is high for smaller particle. Electrostatic precipitators are widely used in. No. Electrostatic precipitators are not widely used in thermal power plants. Not widely used. Electrostatic precipitator, 1 minute. Electrostatic precipitator widely used in thermal power plants, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट से फ्लाई ऐश निकल जाएगा, फ्लाई ऐश। सो फ्लाई ऐश रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रो प्रेसिपिटेटर्स आर रिक्वायर्ड, ट्रू। फ्लाई ऐश कलेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर रिक्वायर्ड, ट्रू। ESP कैन कलेक्ट ड्राई और वेट पार्टिकुलेट, कोई चीज कलेक्ट करेगा ESP, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ट्रू। बैग फिल्टर्स वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंटरसेप्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। हमको ऐसा बोलेगा इंटरसेप्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कैसा हो जाएगा बैग फिल्टर में? बैग को क्लॉथ दिएगा ना, क्लॉथ, एक क्लॉथ का ऊपर पोल्यूटेंट पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड एंड अटैच्ड, सो इनको बोलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। बिकॉज एक चीज भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, दूसरा नहीं, MSQ नहीं, MCQ। Collection efficiency of cyclone collector is high for moderate particles, not for smaller particles. Diameter of particle
greater than 20 microns or 25 microns only possible, not 1 micron, not for 1 micron particle, not for smaller particle. That is why wrong, क्योंकि हम इनकरेक्ट निकलना पड़ेगा, एक भी इनकरेक्ट करना पड़ेगा. Some steps are related to collection of municipal solid waste have been mentioned below. What is the correct sequence? Order of conventional system of collection of MSW. पहले हमारा घर में कचरा निकलना पड़ेगा डस्टबिन में. हमारा घर में कचरा थ्रो करेगा ना, डस्टबिन में थ्रो करेगा, वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट. हाँ, वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, 2 डस्टबिन ले लेंगे, 1 ब्लू कलर 1 रेड कलर, और 1 ब्लू कलर 1 ग्रीन कलर. वेट वेस्ट एक में डाल देंगे, ड्राई वेस्ट और दूसरा में डाल देंगे. देन कलेक्शन ऑफ solid waste in small containers in individual houses. This is first step, no? Step 1. So that option 3 4 निकल दिया. Then small container में कलेक्ट करने के बाद कचरा निकलने वाला आएगा. Waste collecting people will come with their hand driven carts, small auto rickshaw. Small auto rickshaw will come. ये हो गया काम, काम हो गया, आंसर मिल गया. सो हमारा घर को पहले स्मॉल डस्टबिन में डाल देंगे, कचरा निकलने वाला आएगा, इनका ऑटो रिक्शा से इनको दिएगा. देन दे आर टेकिंग इट एंड थ्रोन इनटू ए रोड साइड ए चैम्बर. ऐसा हो जाएगा, रोड साइड में एक चैम्बर, कंक्रीट और मैसोनरी चैम्बर रोड साइड में निकल जाएगा. दिस इज बी. नेक्स्ट, आफ्टर दैट म्युनिसिपैलिटी से ट्रक मिल जाएगा हमको. ट्रक, ये म्युनिसिपल ट्रक आके वहां से कलेक्ट करके रोड साइड चैम्बर से सॉलिड वेस्ट कलेक्ट करके डंपिंग यार्ड तक चल जाएगा. सो आंसर इज CABD. CABD आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पूछ रहा है. Incomplete combustion of carbonaceous fuel releases carbon dioxide as major pollutant. देखो, कंबशन बोलने के बाद कंप्लीट कंबशन, 100% कंबशन, कंबशन बोलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड आएगा. बट इधर क्या बोल दिया? इनकम्प्लीट कंबशन बोल दिया. कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगा, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड. सो दिस इज इनकरेक्ट. सो व्हाट इज इनकरेक्ट? ये 1 इज इनकरेक्ट. और रिमाइनिंग बात करने का भी जरूरत नहीं, बिकॉज एक ऑप्शन भी सेलेक्ट करना पड़ेगा. ओनली 1 इज इनकरेक्ट. म्युनिसिपल ड्रेनेज सिस्टम एमिट H2S गैस, ट्रू. थर्मल पावर हाउसेस आर मेन सोर्सेस ऑफ SO2, ट्रू. वेल्डिंग ऑपरेशंस में रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड, दिस इज ऑल्सो ट्रू. 1 इज रॉन्ग. कार्बन क्रेडिट सिस्टम हेल्प्स. ये कार्बन क्रेडिट सिस्टम क्या है? देखो, कार्बन क्रेडिट सिस्टम ऐसा आएगा, आप एक इंडस्ट्री बन रहा है. नाउ फ्रॉम ए फार्मर, फ्रॉम ए फॉरेस्ट मैनेजमेंट यूनिट, फ्रॉम ए ग्रीन यूनिट, यू हैव टू बाई 1 कार्बन क्रेडिट, 1 मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. देन आपका इंडस्ट्री से इतना कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन emitted, that will be overcome and taken by this forestry, overcome or taken by this plantation. Carbon credit system. So that carbon credit system helps to reduce greenhouse gas emission. Greenhouse gas emission समझ आ रहा है? ये इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं था, फॉरेन कंट्रीज में इतना सारा पॉपुलर हो गया. आप एक इंडस्ट्री बनने का पहले आप बाजू वाला का एग्रीकल्चरल लैंड, फॉरेस्ट लैंड से परमिशन लेके वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में निकल जाएगा. सो इनको पैसा देके आप कार्बन क्रेडिट सिस्टम परचेज करना पड़ेगा. एक इंडस्ट्री से दिस मच अमाउंट ऑफ कार्बन क्रेडिट, so you have to purchase and overcome the pollution, to overcome the pollution. New system of sanitation needed over old conservancy system.
पुराना कंजर्वेंसी सिस्टम में क्या हो जाएगा, ओल्ड सिस्टम ऑफ कंजर्वेशन में बोथ द सिस्टम्स हैव एन इक्वल चांसेस ऑफ पोल्यूटिंग वाटर बॉडी। अरे बोथ हैव इक्वल चांस होगा तो नया सिस्टम का जरूरत क्या है? नो, न्यू सिस्टम पोल्यूट सिटी वाटर सप्लाई। अरे नया सिस्टम सिटी वाटर सप्लाई पोल्यूट करने के बाद ओल्ड सिस्टम भी अच्छा होगा, नया सिस्टम इन्वेंट करने का जरूरत भी नहीं है। ओल्ड सिस्टम में पोल्यूट सिटीज वाटर सप्लाई, यस, ओल्ड सिस्टम में पोल्यूट सिटी वाटर सप्लाई, सिटी का पूरा पानी गंदा हो जाएगा बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन सिस्टम। According to Air Prevention and Control of Pollution 1981, emission is release। क्या रिलीज करेगा? एयर का बारे में बात कर रहे हैं। एयर में कौन सा पार्टिकल हो जाएगा? एयर में कौन सा सॉलिड, लिक्विड, गैसियस क्या हो जाएगा? एयर में पूरा का पूरा तीन मिल जाएगा हमको, सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर, लिक्विड पोल्यूटेंट, गैसियस सब्सटेंसेस coming out of chimney, duct or any other outlet। Which of the given options does not include? समझ लो, not important हो जाएगा इधर, not। प्लास्टिक वेस्ट, गार्बेज, स्ट्रीट स्वीपिंग, सीवेज। अरे सीवेज इज नॉट अंडर सॉलिड वेस्ट, सीवेज इज नॉट अंडर सॉलिड वेस्ट, रिमाइनिंग एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ solid waste, sewage is not in terms of solid waste। Which of the following statements about carbon footprint is incorrect? पहले कार्बन फुटप्रिंट क्या है देखो, टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन generated by human activity, vehicles, burning of fossil fuel, इंडस्ट्रीज से हम एनवायरनमेंट में कितना कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन निकल जाएगा, दैट इज कार्बन फुटप्रिंट। सो इट इज नॉट अबाउट वॉकिंग और साइक्लिंग, सो यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट वॉकिंग और साइक्लिंग बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट इनकरेक्ट पूछ रहा है, नॉट करेक्ट। इफ यू चूज टू वॉक और साइकिल यू लेसन योर कार्बन फुटप्रिंट। यस, व्हीकुलर पोल्यूशन नहीं हो जाएगा तो कार्बन अमाउंट, फुटप्रिंट अमाउंट कम हो जाएगा, ट्रू। यू प्रिफर टू ड्राइव ऑल टाइम, योर कार्बन फुटप्रिंट विल बी हाइयर। यस, इफ यू ड्राइव द व्हीकल्स कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा हो जाएगा, ट्रू। मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, यस, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स विल फॉर्म secondary carbon footprint, true, because carbon footprint will be classified into two types, primary, secondary। tertiary नहीं है, primary, secondary। ये primary क्या है? directly emitted from source, primary। indirectly emitted from source, indirectly emitted carbon dioxide, methane is secondary, like we studied primary air pollutant, secondary air pollutant। directly emitted from source are primary, indirectly emitted from source are secondary। Which of the following traffic sources will cause a noise of highest level during its operation? Inland water traffic, rail traffic, road traffic, jet aircraft। सुनो अच्छे से, जेट एयरक्राफ्ट नहीं, जेट एयरक्राफ्ट एट टेक ऑफ स्टेज, जेट एयरक्राफ्ट एट टेक ऑफ स्टेज। देखो इधर, एयरक्राफ्ट एट टेक ऑफ स्टेज 120 डेसिबल्स, कार हॉर्न 110, सबवे 100, ट्रक और मोटरसाइकिल 90, बिजी क्रॉस रोड्स 80, नॉइस लेवल बाय ए बाइक 70। सो व्हाट इज कमिंग अंडर एक्सट्रीम लाउड? Extremely loud is aircraft, aeroplane at takeoff condition, aeroplane at takeoff condition, so that it should be 120 decibels extremely loud condition। हमारा आंसर यहाँ से मिल जाएगा, आप ये नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा हो जाएगा। चलो गाइस, हम एनवायरमेंटल एसएससी जेईई पीवाईक्यूज कर दिया, और दूसरा और एक वीडियो आएगा हाइड्रोलॉजी इरिगेशन का बारे में, हम बात करेंगे इनका बारे में। बट सुन लो, एनवायरमेंटल में पूरा क्वेश्चंस 22 क्वेश्चंस में सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन आ गया वाटर सप्लाई वेस्ट वाटर से,
पूरा का पूरा रिमाइनिंग एयर पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, नॉइज पोल्यूशन इतना इंपॉर्टेंट हो गया आजकल, क्योंकि दिस आर द ट्रेंडिंग लेटेस्ट पोल्यूशंस इन आवर एनवायरनमेंट आल्सो। तो ध्यान से पढ़ लो। ऑल द वेरी बेस्ट।